Hello, good morning children once again. I am on chapter number 56, Swachh Bharat Abhiyan. Now this is a very popular abhiyan or a mission which has been started by the Narendra Modi government in 2014 और आप सब बच्चों को इसके बारे में पता है. आपके मैम लोगों ने खूब आपको पढ़ाया है इसके बारे में. And the regular jingle which you've been hearing related to Swachh Bharat Abhiyan, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने. All of you know it so well, right? Swachh Bharat Abhiyan basically was launched in 2014 on the 145th birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of the nation, right? And क्यों महात्मा गांधी का बर्थडे और ये डेट चुना? There's a big reason behind it, because Mahatma Gandhi or Bapu was one person who believed in cleanliness, who believed in sanitation, who believed that sanitation and cleanliness is next to godliness. He believed that even independence is less important, the most important in sanitation and cleanliness, which directly assists in the well-being and good health of the people of this country. When he went to South Africa in 1893, children, he was known as Gandhi the scavenger. He himself cleaned his toilets and the lavatories, and once upon a time तो एक बार जो बा थी, उनकी वाइफ थी, उनके साथ उनका झगड़ा हो गया, बिकॉज बा जो थी बहुत धार्मिक थी और बा ने कहा मैं टॉयलेट साफ़ नहीं करूँगी. तो गांधी जी ने उनसे कहा तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो टॉयलेट क्लीन करने ही पड़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, the Clean India mission is basically inspired from our father of the nation. ये किसी political party particular से related नहीं है. This is beyond politics, above politics, and this is a pan India campaign जो सभी political party, सभी जाति के, सभी caste के, creed के लोगों ने एक साथ अपनाया और इसे एक वादा के तौर पर लिया कि हम 5 साल में इस देश से जो है इस देश को साफ बनाएंगे. और उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे इस पूरे मिशन के, विच वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय 2019. हाउएवर चिल्ड्रन, 2019 तक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, बट स्टिल वी नीड टू गो अ लॉन्ग वे अहेड in order to clean India fully. Okay? Swachh Bharat Abhiyan is a Swachh Bharat mission. These days you must be watching and observing that there is another jingle which is becoming popular related to एक कोई commentary चलती रहती है मास्क से related. वो स्वच्छ भारत से related नहीं है, वो कोरोना से related है, right? तो पहले हम वो जो गाड़ी देखते थे ना सुबह सुबह, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वो चलती थी. सो वो एक तरह का अवेयरनेस कैंपेन होता था सब जगह कि उसमें अपन उसको सुनकर we get motivated to keep ourselves clean. Led by the Government of India to make India a clean India. The campaign was launched officially by the Government of India on 145th birth anniversary of the great person Mahatma Gandhi on 2nd of October 2014. It was launched at Rajghat, New Delhi. Rajghat, जो गांधी जी की समाधि है. The Government of India has aimed to make India clean India by 2nd October 2019. इस डेट को गांधी जी के 150 एनिवर्सरी पूरे हो जाते हैं थ्रू दिस कैंपेन. इट इज़ अ पॉलिटिक्स फ्री कैंपेन एंड इंस्पायर्ड बाय पेट्रियाटिज्म, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक देशभक्ति का एक मोटिव है इसके पीछे. इट इज़ लॉन्च्ड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन टू मेक दिस कंट्री अ स्वच्छ कंट्री. दिस कैंपेन हैज़ इनिशिएटेड पीपल ग्लोबली टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस. Teachers and students of the school are joining this Clean India campaign very actively. स्वच्छ प्लेज, राइट? अब ये स्वच्छ प्लेज क्या है, ये महात्मा गांधी ने किस तरह से प्लेज किया था, इसको पढ़ते हैं. महात्मा गांधी dreamt of an India which was not only free but also clean and developed. Mahatma Gandhi secured freedom for Mother India. Now it is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. Beta, as responsible citizens, as per our civic duties,
हमें कहीं पर भी लिटर नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे पार्क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे कोई मॉल हो, ना करनी चाहिए, ना किसी को करने देना चाहिए. I will devote 100 hours per year, that is 2 hours per week, to voluntary work for cleanliness. अगर हम ये सब करने लगे तो वाकई में देश साफ रहेगा. I will neither litter, litter का मतलब हम कचरा ना तो फैलाएंगे, nor let others litter, दूसरों को भी फैलाने से, गंदगी करने से रोकेंगे. I will initiate the quest for cleanliness with myself, मतलब ये जो जर्नी है, ये जो एम्बिशन है, मैं मुझसे शुरू करूँगा, फिर माई फैमिली, माई लोकेलिटी, माई विलेज एंड माई वर्क प्लेस. अगर हम इस दायरे में, इस विसिनिटी में अपने आप को साफ रखते हैं तो ऑब्वियसली द एंटायर कंट्री विल स्टे क्लीन. आई बिलीव दैट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट अपीयर क्लीन आर सो बिकॉज दैट सिटीजन्स डू नॉट इंडल्ज इन लिटरिंग, नॉर डू दे अलाउ इट टू हैपन. बेटा मैं खुद भी बहुत कुछ कंट्रीज़ में घूमी हूँ, 5-7 देशों में, आप लोग भी गए होंगे, और बाहर के कंट्रीज़ हमसे कहीं कहीं ज़्यादा क्लीन है. वो क्यों क्लीन है? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर वो गंदगी करते हैं तो उसकी हैवी पनिशमेंट है. आप वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा भी कहीं पे नहीं गिरा सकते, आप वहाँ पर कहीं स्पिट नहीं कर सकते, आप अपने ऐसे डॉग को लेके जा नहीं सकते कि मैं डॉग को घुमाने लेके जा रहा हूँ. So there are so many rules and regulations that are followed. That is why those countries are very, very clean. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat mission in villages and towns. ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने गाँव में और टाउन्स में इस मिशन को फैलाएं. I will encourage 100 other persons to take this pledge which I am taking today. मतलब हम दूसरों को भी इस तरह की प्लेज लेने को मोटिवेट करेंगे. I will endeavor to make them devote their 100 hours for cleanliness. I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean. और जैसा कि बोला गया है, cleanliness is next to godliness. सफाई अगर हम रखते हैं तो एक तरह से वो हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, right? So we must vouch today or commit ourselves today that we shall keep our nation clean. और नेशन को क्लीन करने के लिए हमें अपने आप से शुरू करना है, अपने घर से शुरू करना है, अपनी लोकेलिटी से, अपनी गली से, अपने मोहल्ला से, अपने स्कूल से. कचरा जब भी डालेंगे डस्टबिन में डालेंगे, चाहे वो छोटा सा रैपर हो. 2 तरह के डस्टबिन आजकल रखे जाते हैं, ब्लू एंड ग्रीन, आपने सब जगह देखे होंगे. सो ब्लू इज़ फॉर द ड्राई लिटर, सूखा कचरा जो होता है, पेपर एंड ऑल, एंड ग्रीन इज़ फॉर द वेट वेस्ट, जो गीला कचरा होता है वो उसमें डालना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ द स्वच्छ भारत अभियान, एंड ये कोई अभी ख़त्म नहीं हुआ है. दिस मिशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, एंड ये हमेशा कंटिन्यूड ही रहना चाहिए, सो एज टू लेट आवर कंट्री प्रॉस्पर एंड डेवलप like other countries of the world. Okay, so I hope you understood the chapter well. Learn this, prepare this for your exams. Okay, till then, goodbye beta.